Now see here, types of errors in the program. Before going to start with this, first you understand about the debugging. Listen, bug. We have two words. One is bug and second one is debug. Bug means errors. Bug means errors and debug means removing error from the program is known as debugging. Debugging is a process to remove program from the to remove errors from the program. Look here, debugging refers to the process of locating the place of errors. मतलब एरर को बताता है कि यहाँ पर एरर आई है कॉज ऑफ एरर किस कारण से एरर आई है एंड करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली. तो मीन्स रिमूव द error from the program. This is known as debugging. Clear? Now, what is errors or why they are occur? Listen, error is a bug in a program. देखो, an error, sometimes called a bug, is anything in the code that prevent a program from compiling and running correctly. Means once the error occurred in our program, then our program cannot be run correctly, or maybe it not compiled correctly. So how many types of errors occurred? Yeah, what are the errors? So errors are three types. Look here, three types of error. One is compile time error, second one is runtime error, third one is logical error. Some errors which occurred at the design time means once you compile your code and error is displayed before running. Okay, that error is called compile time error. Means errors that occurred during compile time, that error is known as compile time error. Compile means when you are writing your code, when you are writing your code and you have done some mistake, like you have not given colon sign, or maybe you have not used proper syntax, proper rules, like if you want to write for in capital letter, if you want to write for for, but you have written in capital letter F capital O R, then it will generate error because Python is a case sensitive language. Okay, when you not follow any rules of Python language, means you violate the rules of Python language, then it will generate error. So errors that occur during compile time, that error is called compile time error. When a program compiles, its source code is checked for whether it follows the programming language rules or not. Means once your code is checked and check it whether your code is correctly written, means all the rules and regulations are followed, yes or no. If it is yes, then there is no error. If you have done some mistake while writing the code, then it will generate an error. So here in this category we have error that is called syntax error. Syntax error occur when rules of programming language are misused. जब programming language के rules आप misuse करोगे, then it will generate error. Now see this example. One example is given here: x less than minus y multiply z. So this is the mistake. Why? Because this is this is a less than sign, or with the less than sign we need either less than equals to or something else. ठीक है, या तो लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल्स टू आएगा या ओनली लेस देन आएगा. Clear? Or if it is condition, if it is condition, so we need to write if statement also. If x is less than, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक है. ठीक है, प्रॉपर सिंटेक्स का यूज नहीं हुआ है. सेकेंड, इफ x इक्वल्स टू x को इंटू वाई, ये लिखा हुआ है, बट इफ इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. इफ में कंडीशन आती है और उसके बाद नीचे स्टेटमेंट्स आएंगी, तो वी नीड हियर कोलन साइन. तो कोलन तो है ही नहीं. वन मोर मिस्टेक इज हियर. हियर x इक्वल्स टू x इंटू वाई इज रिटर्न. दैट मीन्स x in whatever value of x into y, means this result will assign in variable x. तो means x into y का जो result होगा, that will assign in variable
x, ये x में असाइन होगा, ठीक है। बट इन दिस केस वी वांट टू कंपेयर, क्योंकि हमें क्या करना, इफ यदि x की वैल्यू x इंटू वाई के बराबर हो तो ऐसा हो जाए, करना तो हमें ये था, बराबर हो जाए मीन्स इक्वल टू का साइन है। यहाँ पर क्या साइन लगा हुआ है, असाइनमेंट, तो असाइनमेंट के साइन के कारण ये क्या हुआ, एरर जनरेट हो गई। तो हियर देयर इज एन एरर। देखो, these two statements will result in syntax error as less than equals to less than minus is not an assignment operator in Python, and equal to is a assignment operator, not a relational operator। जो सेकंड वाले स्टेटमेंट में लिखा है इक्वल टू साइन, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट relational operator। in relational operator we have equal to, not equals to, less than equals to, greater than equals to, less than or greater than, these are the relation operator, but this is known as assignment operator, that's why it will generate error। और second वाला देखो क्या लिखा है, also if is a block statement, it requires a colon at the end of it। ठीक है, यहाँ पर कोलन लगेगा क्योंकि इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आते हैं। ब्लॉक मतलब जैसे हेडर होगा, इफ का हेडर है, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इसका स्टेटमेंट जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बट हियर कोलन इज मिसिंग, तो दैट्स व्हाई रूल्स का जो है वो मिसयूज हो रहा है, तो यहाँ एरर जनरेट होगी। दिस एरर इज नोन एज सिंटैक्स एरर, और दिस सिंटैक्स एरर कम्स अंडर कंपाइल टाइम एरर्स। Now see the next page of this. The correct code, correct statement of the follows, like x equals to y into z. It means whatever value we get from here x into y, this will store in variable x। वो कहाँ चली जाएगी, x में स्टोर हो जाएगी। If x equals to x into y, then it checks condition is true or not, ठीक है। So this is the correct statement of previous one, जो पहले थे उसके correct statement ये है। Next one is semantics error। Semantic error says that rules wise it is correct, but grammatically, और या ग्रामेटिकली कह सकते हो, और मीनिंगलेसली, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होगा और मीनिंग इसका गलत निकल रहा होगा, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज semantic errors। Just take a real life example. If I say Sita plays guitar, it means सीता गिटार बजाती है। सीता प्लेज गिटार, दैट मीन सीता गिटार बजाती है। मैंने स्टेटमेंट आपको ये बोला, बट स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूँ, गिटार प्लेज सीता, क्या गिटार सीता को बजाता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स तीनों में देखो, पहला स्टेटमेंट था सीता प्लेज गिटार, 3 वर्ड्स आर देयर, सीता प्लेज और गिटार 3 वर्ड थे, रूल वाइज भी सही थे और ग्रामेटिकली भी सही थे, ठीक है, मीनिंग भी सही आ रहा था। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मैंने बोला गिटार प्लेज सीता, वर्ड वही है, गिटार प्लेज सीता या सीता प्लेज गिटार, बात है कि वर्ड तीनों के तीनों वही है, बट मीनिंग गलत निकल रहा है। तो जब मीनिंग गलत निकलेगा तो इस टाइप की जो एरर होगी वो सिमेंटिक एरर्स में आएंगी। देखो यहाँ लिखा भी है, सिमेंटिक एरर्स अकर व्हेन स्टेटमेंट्स आर नॉट मीनिंगफुल। जब स्टेटमेंट्स आपके मीनिंगफुल नहीं होंगे तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड semantic errors। और यहाँ एग्जाम्पल पे दिया है, द स्टेटमेंट लाइक सीता प्लेस गिटार इज सिंटैक्टिकली एंड सीमेंटिकली करेक्ट, दोनों फॉर्म में सही है, मतलब कोई एरर भी नहीं है और मीनिंग वाइज भी सही निकल रहा है, ठीक है। एज इट हैज सम मीनिंग, बट द स्टेटमेंट गिटार प्लेस सीता, अब ये सिंटैक्टिकली सही है, मतलब ग्रामर के हिसाब से देखा जाए दोनों नाउन है, ये हमारी वर्ब हो गई, उसके अकॉर्डिंग सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही है, लेकिन मीनिंगलेस है, मीनिंग गलत निकल रहा है, तो इसका मीन्स ये सिमेंटिकली गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। देखो एक एग्जांपल या प्रोग्रामिंग का एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा है x इंटू वाई इक्वल टू जेड, बिल्कुल सही है, इक्वल टू का साइन है, दैट इज फॉर असाइनमेंट, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका वेरिएबल है, रूल्स वाइज ये सही है, बट मीनिंग वाइज गलत है। मीनिंग क्या निकल रहा है इसका, वैल्यू ऑफ जेड is assigned in x into y, that is not possible, क्योंकि लेफ्ट साइड में कभी भी कैलकुलेशन नहीं होती है, कैलकुलेशन हमेशा राइट साइड पे होती है,
जो भी वैल्यू, जो भी रिजल्ट इसका आएगा वो लेफ्ट साइड में असाइन होगा। मतलब अब यदि हम लिखते z इक्वल्स टू x इंटू वाई, दैट इज मीनिंगफुल। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। हाँ, यहाँ देखो लिखा भी है, सीमेंटिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, सिमेंटिक क्या देता है, आपको कुछ रूल्स देता है जिससे क्या निकलेगी, स्टेटमेंट की मीनिंग निकलेगी। ठीक है, मीनिंग निकल ली है तो दैट मीन्स वो करेक्ट है, मीनिंग नहीं आ रही है दैट मीन्स वो रॉन्ग है। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स आर दोज which will occur at the compile time. Once your program is executed, after execution it will generate error. That error is called logical error. Means that suppose that you want to perform multiplication, but at the time of writing program, instead of multiplication sign you have written plus sign. Means that your logical mistake, मीन्स योर मिस्टेक इज लॉजिकली। ठीक है, आपने जो भी गलती करी है वो लॉजिकली करी है, लॉजिक गलत हो गया आपका, आपको करना मल्टीप्लाई था बट आपने बाय मिस्टेक प्लस कर दिया। वंस यू आर गेटिंग द रिजल्ट, तो रिजल्ट के टाइम पर यू आर सेइंग दैट ओ व्हाट हैपेंड, ऐसे ही कहोगे आप लोग। आना तो कुछ और, रिजल्ट आपको पता था कि ये आना चाहिए बट आंसर वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक एट द लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल पार्ट कहते हैं ना, प्रोग्राम का लॉजिक सही लगाओ, प्रोग्राम लॉजिक सही लगाओगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो लॉजिक आपका गलत है दैट मीन्स वो मिस्टेक देगा, वो एरर देगा। तो वो कब पता चलेगी आपको, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे, मतलब रन कराओगे। तो यहाँ लिखा है सम टाइम इवन इफ यू डोंट एनकाउंटर एनी एरर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। मीन्स जब आपको कोई एरर नहीं मिलती है कंपाइल टाइम पे एंड रन टाइम ऑल्सो, रन टाइम पे भी कोई एरर नहीं मिली। एरर का मीन्स क्या हुआ, आपसे मैंने कहा कि 8 4 जा 32 होता है, सुनना ध्यान से, 8 4 जा 32 होता है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, 8 इंटू 4 करना है, बट बाई मिस्टेक आपने क्या कर दिया, 8 प्लस 4 कर दिया प्रोग्राम लिखते समय। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 12। तो प्रोग्राम की एरर ना कंपाइल टाइम पे आई ना रन टाइम पे आई। ठीक है, कंपाइल टाइम पे उसने सही कंपाइल करा, उसने आउटपुट भी दे दिया, 12 आपका आंसर आ गया, रन टाइम पे आपका आंसर 12 आ गया। तो आपने कहा मेरा आंसर तो आ गया बट मेरा आंसर सही नहीं आया। तो जब आंसर सही नहीं आता लेकिन आंसर में मिस्टेक है, तो दैट एरर इज नोन एज लॉजिकल एरर। तो वही कहना चाह रहा है कि जब यू डोंट एनकाउंटर एनी एरर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, योर प्रोग्राम डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपको रिजल्ट करेक्ट नहीं देता है। ठीक है, तो उस टाइप की एरर को क्या बोलते हैं, लॉजिक एरर कहते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोग्रामर्स मिस्टेक एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ही और शी इज ट्राइंग टू सॉल्व, मतलब जब प्रोग्रामर ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी, एनालिसिस करने की कोशिश करी, तो उस टाइम पर वो सही से एनालिसिस नहीं कर पाया। ठीक है, वहां पर एनालिसिस करने पर मिस्टेक हुई है, तो उस कारण इसका रिजल्ट गलत आ रहा है। क्लियर? लॉजिकल एरर इज क्लियर टू यू? यस सर। Excuse me, Okay, sir. next, yes, Chirag, something you want to ask? Yes, sir. Okay, Chirag, yes, ask. Now, runtime errors and errors that occur during the execution of program is called runtime error. Means जब आप प्रोग्राम चला रहे हो और प्रोग्राम चलाते वक्त एरर आ गई, सपोज दैट यू वांट टू मेक अ डिवीजन प्रोग्राम, you want to make a program of division like a divides by b. ठीक है, and you have given value like the value of a is 10 and the value of b is 0, or you know very well any number is not divided by 0, it will generate error। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होगा वो एरर देगा, तो दिस एरर इज नोन एज रन टाइम एरर। तो ऐसी कोई एरर आपकी जो आएगी उसे रन टाइम एरर बोलेंगे। वो कब आती है, जब आप वैल्यू गलत दे देते हो। तो दीज आर द हार्डर टू डिटेक्ट। हार्डर टू डिटेक्ट व्हाई, बिकॉज देयर इज नो मिस्टेक इन द कंपाइल टाइम, नो मिस्टेक इन द सिंटैक्स। ठीक है, सिमेंटिकली एवरीथिंग इज करेक्ट। जब सब कुछ सही है तो एरर क्यों आई,
एरर्स डिपेंड्स ऑन योर वैल्यूज, वैल्यू के अकॉर्डिंग एरर आ रही है, ठीक है। सम रन टाइम एरर्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विच इज देन कॉल्ड क्रैश्ड और एबनॉर्मली टर्मिनेटेड। मतलब कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो प्रोग्राम को स्टॉप कर देती है, जो प्रोग्राम चल रहा है उसको स्टॉप कर देती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम हमारा एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया या क्रैश कर गया, ठीक है जी।